हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर यानी इतिहास का चैप्टर नंबर जो होगा 13 है, जिसमें हम करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था उन सभी राजाओं के अंतर्गत होगा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, या जो यूपीएससी के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is the most important here. Artisanally is a non-agriculture production. That is the most important. Artisanally, there is a non-agricultural production here. Okay, through the agriculture is a formed the occupation of the bulk of the people. A variety of craft also existed on the significant scale in the rural as well as the urban. The area of country and this craft introduced a textile, poetry making, dance, sugar making, metal work and paper makings is a woodwork, and the arms and the horns is a manufacturing, and sea world of the mechanicals is a work, etc. There is an important here, and important is a prominent is a craft. There are what do you mean to the prominent of craft? The textile is a production was one of the most widely practiced craft of the Middle India. The India is a weaver is produced for a major types of fabric, cotton, silk, woolen, and mix is called cotton. Bengal, Lahore, Agra, Awadh, and Patna, and Fatehpur Sikri, and the Gujarat, etc. were a prominent cotton textile and production of originals. As a Kashmir, Lahore, and Agra, where is a major Sawal as a carpet is making center. Apart from the manufacturing is a Bengal and the Gujarat were renowned for the export of textiles good. That is important. The art of the dyeing to the bleachings of development as a separate and specialized as a craft during this period. The Brauch and Allahabad, Surat, Patna, and Sonargaon is a Deccan, is a Masuli, Patrams, etc. Where is a major decline of the blessings of center. And sugar was a manufactured all over the country. Sugar in it is a variant, good, and the powder is a fine, grain to the sugar, etc. Were produced in a Bengal, Orissa, Ahmedabad, Lahore, Multan, and the many other places. There is a important. The minor interaction was another is a major industry. The major industry is the most important, and shawl, set patries, alums, mica, etc. And the ware is produced on a large scale. The Sambhar lake is a Rajasthan. Sambhar is a Rajasthan in the lake. The Punjab rock salt mine in the sea water, where is some major source of salt production. And sea salt was the mainly is a manufactured in the Bengal and Sindh and Malwa as a masseur and the runners of the coach. Sapeltris is a primarily used as an ingredient for a manufacturing gunpowder. Was one of the most important mineral product. Initially, it was the extract as the Ahmedabad, bordered Patna, etc.
However, by the second half of the 17th century, Patna became one of the most important centers for processing this mineral. And among metal, there is India was deficient in the gold and silver mine, and this metal therefore where is mostly imported. The diamond mining was carried out of the most notable are Golconda. The some other center of the diamond production were by Birgaghar, Bered as a Panna is a Madhya Pradesh, and Khokhara is a Chota Nagpur, etc. And Patna Rajasthan was the main center of the copper production. Iron was the most is commonly found to the metal. The Bengal, Allahabad, Agra, Bihar, Gujarat, Delhi, Kashmir, Chota Nagpur and adjoining to the regional of the Orissa, where is a major iron producing center of the middle period. The paper making as a craft was introduced in the middle. There is India during to the Sultanate period. It was the first manufacturing in the China around to the 1st century AD. The craft grew at the fast pace and the manufacture of the paper was prevalent during to the Mughal period in almost every region. The middle period is a witness is advent of a number of new technical advice and there is a application in the drive to the sector. In the textile sector, introduction of the spinning wheel is a charkha. During there is the 13th century to the 14th century was the most important technology invention. It is a speeded up yarn to the production of by the 6th time in the comparisons to be spindle based yarn to the production. Similarly, peat other looms and introduced in India during the 15th century, which is speedily up to the process of weaving. The draw is a looms was another important weaving device which was used to the simultaneation is a pattern to the waves of different color. And similarly, block print is also is attribute by one is a scholar to be medals India period. In the sector of the metalworks and the metal war, many new technology were introduced in the process of manufacture. Some of such a technology where is implement of the vertically work pits and deep mine with the oval is a shaft. And the use of pulley etc. The production of the high quality steel and the batteries alloys of the copper and zinc were a new metal work of this period. In the arms of their armures of the manufacturing is a sector, the use of the gunpowder and cannon is a firearms etc. Where some of the most important materials inventional is their modern is the artilleries was the mainly is both to be India on the one hand by the Baburs is who had received it from Paris. On the other hand by the Portuguese is beside. The Portuguese is here and beside is the Fateh Sirazis was the outstanding scholar. Is the Fateh Sirazis is the outstanding scholar and the engineer of the Akbar as a regime and made some of the inevitable is inventionally in this sector. The paper making as well have is a notice about the entry to India during this period. Along with all the development, the craft and book winding, there is a important. Although there is a glass making technology was known to be Indians during to the ascent period. Its use was restricted to the manufacturing beads and bangles. During the Middle period, various other glass products such as pharmaceutically films and vessels etc. And also is began to be a manufacture. The practice of the tin coating also is the entire Indian along with their advent of the truck. This technology involved the coating of tin inside the copper and the brass is utilized to prevent the food from acid poison. And next year, organization of production. The craft production was organized in the village as well as the quest boss, and there also exist to the empirical karkhanas in the rural area
and the artisan produced the articles of the daily use. These artisans were a part of the village social network is called to the Jajmani system. Jajmani system is most important here. That this artisan is a part of village and social network is called Jajmani system. And this system was more organized to the Deccan and Maharashtra. The village is artisan as a servant in this is run to the school is a Balbutadar. And the town is a base individually artisan formed nucleus of such as accommodates which were produced from markets. Almost every craft had a specialized artisan who is a produce article from market. At this level of the organization of the craft production, the individual is an artisan is himself is a purchase is a necessary raw materials and the tools manufactured is a commodities and the sold those in the market. And the next year, this mode of artisanally their production, however, are suffering from a major weakness. Since there is a production was organized on the individual basis, on artisans logged a big resource to be invested in the production process. Naturally, the size of final production remained small. A revised theory of form of production is called to the Dadani system. The Dadani system is gradually developed to address the problem. In this system, on artisan was provided with the necessary raw material and advance is a money by such as a merchant who trade in the those is a commodities. And after the expire of the stipulated time, the merchant is collect to the finished good and the sold them in a market. They are important. The royal is a workshop is a karakhana was another unit of the craft production, and these karakhanas were is a part of the royal establishment, and this unit produced is a commodities for the composition of the royal household and the court. Generally expensive and luxury items were produced here. The karakhana employed to the skilled workers who is a work under one roof and were to the surprised by the state officially. Apparently, there is two distinct types of karakhana existed. The first traditionally types of karakhana which is a produce a luxury good in a small quantity but of high artistry is value. Second, mines or arm is a manufacturing unit wherein the standard ornament and the technologically advanced large scale as a production took place here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है दस्तकारी के संबंध गैर कृषि उत्पादन। देखिए यहाँ पर हम गैर कृषि उत्पादन के विषय में चर्चा करेंगे जो कि कृषि से संबंध नहीं था, यानी कृषि के बाद की संस्कृति जैसे गैर कृषि। यद्यपि अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि था, परंतु देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काफ़ी बड़े स्तर पर अनेक प्रकार के शिल्प कार्य भी अस्तित्व में थे और इन शिल्प कार्यों में शामिल थे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, रंगाई, खंडसारी, चीनी बनाना यानी धातु कार्य, कागज बनाना, लकड़ी का काम, शस्त्र और कवच का निर्माण, पोत और निर्माण, रसायनों से जुड़े कार्य सारे कुछ इसमें सम्मिलित थी। यानी ये सारे के सारे जो थे गैर कृषि कार्य थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण था इस समय के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष प्रमुख शिल्प कार्य। देखिए बुने हुए कपड़े का उत्पादन मध्यकालीन भारत में बहुत अधिक व्यापक रूप से किए जाने वाले कारीगर का काम था। भारतीय बुनकर 4 प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया करते थे जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और मिश्रित मोटा सूती कपड़ा। यानी देखा जाए तो सूती, रेशमी, ऊनी और मिश्रित मोटा सूती कपड़ा का उपयोग किया करते थे। कहते हैं बंगाल, लाहौर, आगरा, अवध, पटना, फतेहपुर सिकरी और गुजरात इत्यादि जो है सूती कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था उस समय। और कपड़े के निर्माण में अतिरिक्त जो है बंगाल के जो है गुजरात बुने हुए कपड़े की वस्तुओं के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध निर्यातक के रूप में था उस समय। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल और गुजरात देखा जाए तो काफ़ी उस समय इन चीज़ों के लिए फेमस था। इस अवधि के दौरान रंगाई और ब्लीचिंग यानी व्यंजन की कला पृथक रूप से एक विशिष्ट कारीगरी के रूप में उभर कर आई थी। कहते हैं भंडूच, अहमदाबाद जो है, सूरत, पटना, सिनारगांव और ढाका जो में
मेसोलिपटम्स इत्यादि प्रमुख रंगाई और ब्लीचिंग के केंद्र हुआ करते थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने नाम बोला, भरूच, अहमदाबाद, सूरत, पटना, सोनारगांव, ढाका, मेसोलिपटम्स इत्यादि, ये ब्लीचिंग और रंगाई के मुख्य केंद्र के रूप में जाने जाते थे जो है मध्यकालीन भारत के टाइम। चीनी का उत्पादन पूरे देश में होता था और खंडसारी के विविध रूपों में जैसे गुड़, बोरा और जो है शक्कर इत्यादि का उत्पादन बंगाल, उड़ीसा, अहमदाबाद, लाहौर और जो है मुल्तान और अन्य अनेक स्थानों पर हुआ करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते धातु निष्कर्षण एक अन्य मुख्य उद्योग हुआ करता था और नमक, कलमी, शेरा और फिटकरी, अवर इत्यादि का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता था। राजस्थान की संबड़ झील, पंजाब की रॉक सॉल्ट की खानें और समुद्र के पानी नमक उत्पादन के मुख्य स्रोत के रूप में उसमें जाने जाते थे। समुद्री नमक का उत्पादन मुख्यतः बंगाल, सिंध, मलाबार, मसूर और जो कच्छ के रण में हुआ करता था। कहते कमली शेर, जिसका उपयोग बुनियादी रूप से बारूदी चूर्ण यानी पाउडर बनाने में एक मुख्य घटक के रूप में हुआ करता था और बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन भी था। आरंभ में ये जो है अहमदाबाद, बड़ौदा और पटना इत्यादि में निकाला जाता था। यद्यपि जो है 17वीं सदी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान पटना इस खनिजों के साधन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर के सामने आया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। धातुओं में भारत सोना और चांदी की खानें काफ़ी कमी थी। देखा जाए तो शुरुआत से यहाँ बात किया जाए तो भारत में सोना और चांदी खानों में कमी थी। कहते इसलिए इन धातुओं के प्राय आयात किए जाता था। हीरो का जो है खनन मुख्यतः गोलकुंडा में देखने में आया था और हीरे के उत्पादन के मुख्य जो कुछ अन्य केंद्र भी थे, जैसे वीरगढ़ा, बराड़, पन्ना मध्य प्रदेश और खोखरा, छोटा नागपुर इत्यादि। खेतड़ी राजस्थान और तांबा उत्पादन का मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था उस समय। यानी खेतड़ी जो है राजस्थान में है, तांबा उत्पादन के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। और कहते हैं लो बहुलतम में पाई जाने वाले आम धातु थी। मध्यकाल में बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, बिहार, गुजरात और दिल्ली जो है कश्मीरी, छोटा नागपुर, उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र जो है लोहा उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उस समय विख्यात थी। कागज बनाने की कारीगरी का जो है आरंभ भारत में सल्तनत काल के दौरान ही हुआ था। कागज बनाने कारीगरी कहते हैं सल्तनत काल में बहुत काफ़ी प्रचलित हो गई थी। पहली बार इसका उत्पादन प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास चीन में हुआ था। अब देखिए ये यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि कागज बनाने की जो है किस जो शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम शताब्दी में जो है आसपास चीन में हुआ था ये आरंभ। यानी इसका देखा जाए शुरुआती दौर तो ये चीन में था। और किस समय काल में? प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास। इसके पश्चात इस शिल्प के बहुत तेजी से विकास हुआ और कागज निर्माण मुगल काल में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध होने हो गया था। और मध्यकाल के दौरान अनेक नई तकनीकों और विविध क्षेत्रों में उनके उपयोग का उद्भव भी देखने को मिला। कपड़ा बुनाई, टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान चरखे स्पिनिंग व्हील की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। कहते हैं तकली से धागा जो है निर्माण करने की तुलना में चरखे से धागों के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई। और इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में भारत में खड़ड़ी यानी पीठ मूल की शुरुआत हुई, जिससे कपड़े की बुनाई के काम को बहुत गति मिली। ड्रामूल्स बुनाई के एक और महत्वपूर्ण युक्त यानी डिवाइस थी, जिसका उपयोग विविध रंगों के धागों की बुनाई के पैटर्न बनाने के साथ साथ किया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार कुछ विद्वान जो है ठप्पे यानी सांचों से छपा यानी बल्क प्रिंटिंग के काम का श्रेय भी भारत के मध्यकालीन काल को ही देती हैं। यानी देखा जाए तो ये बल्क प्रिंटिंग होती है ये मध्यकाल में ही शुरू हुई थी। धातु विज्ञान और धातु कार्य के क्षेत्र में इसके निर्माण की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की नई औद्योगिक का आरंभ हुआ, जिसमें कुछ प्रमुख थी सीधी खड़ी खुदाई के खंडे खोदना यानी वर्टिकल बोर पिस्टस, अंडकार नाल यानी लोवल्स सॉफ्ट से गहरी खानों की खुदाई, पुली इत्यादि का उपयोग किया जाता था। कहते हैं उच्च गुणवत्ता के स्टील और तांबा और जस्ता टीका की मिश्र धातु जो है विद्रकी का उत्पादन इन काल के नए धातु क्रम में हुए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शस्त्रों और कवच निर्माण के क्षेत्र में बारूद, तोप, अग्नेय अस्त्र इत्यादि मध्यकालीन काल के नवीन महत्वपूर्ण खोज थी।
भारत में आधुनिक तोपखाना एक और तो बाबर लेकर आया था, जैसे इसके जो है फारस की प्राप्त किया गया था, और दूसरी ओर इसे पुर्तगालियों द्वारा भी लाया गया था। इसके अतिरिक्त जो है फतेहुल्लाह शिराजी ने, जो अकबर के शासन काल में अत्यंत जो मेधावी और दक्ष इंजीनियर था, इस क्षेत्र में जो अमूल्य नई खोज भी किया। तो कहते हैं काफी महत्वपूर्ण ये सब बात थी। कहते हैं कागज बनाने की कला, जैसे कि उल्लेख किया गया है, भारत में इसी अवधि के दौरान आई थी, और इसके साथ ही किताबों पर जिद बनाने की कला का विकास भी इसी के साथ साथ हुआ था, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। यद्यपि कागज बनाने की कला को भारतीय प्राचीन कला के दौरान ही परिचित थे, परंतु इसका उपयोग जो है मोती और चूड़ियां बनाने तक ही सीमित था। मध्यकाल में कांच की विभिन्न वस्तुएं जैसे औषधि शीशियां और जो है फार्मास्यूटिकल फॉलेस बर्तनों आदि का निर्माण भी होने लग गया था। कहते तुर्की के भारत में आने के साथ ही रंगा के परत यानी कलाई करने चढ़ाने टिक कोटिंग का काम भी शुरू हो गया था, और इस तकनीक में जो है तेजाब के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए तांबे और पीतल के बर्तनों के अंदर टीन का एक परत चढ़ाई जाती थी, जिसे हम कलाई की जाती थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उत्पादन की व्यवस्था। देखिए उत्पादन की व्यवस्था क्या है। कहते गांव और कस्बे दोनों स्थानों पर शिल्पों के उत्पादन की व्याख्या हुआ करती थी। वहाँ शाही कारखाने भी होते थे। ग्रामीण क्षेत्र में कारीगर दैनिक उपयोग की वस्तु बनवाया करते थे, और ये कारीगर गांव के सामाजिक तंत्र का हिस्सा हुआ करते थे, जिससे जजमानी प्रथा क्या कहा करते थे। यानी जजमानी प्रथा आप जानते ही हो, ठीक है, कि जो किसी का सेवा पानी करता है वो जजमान कहलाता है। दक्कन और महाराष्ट्र में यह प्रथा ज़्यादा व्यवस्थित थी, और गांव के दस्तकारों और सेवकों के इस क्षेत्र में जो है बतूलदार भी कहा जाता था। यानी जजमानी प्रथा जो है गांव के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, और आज के समय में भी आपको ये दिख जाएगी। शहरों में रहने वाले कारीगर जैसे उपयोगी वस्तुएं केंद्र में होते थे, जिनका उत्पादन बाजारों के लिए किया जाता था। लगभग प्रत्येक शिल्प के लिए एक विशेष कारीगर हुआ करता था, जो बाजार के लिए चीजें निर्मित किया करता था। कहते शिल्पकारी उत्पादन की व्यवस्था के इस स्तर पर कारीगर व्यक्तिगत रूप से जो है आवश्यक कच्चे माल और औजारों की व्यवस्था किया करते थे। कहते माल तैयार करता था और इसे बाजार में बेचा भी जाता था, परंतु इस प्रकार कारीगरों की वस्तुएं जो निर्मित करने में एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि उत्पादन की व्यवस्था खुद व्यक्ति अपने आप किया करते थे। इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में बड़ी पूंजी जो है लगाने में कारीगर असमर्थ हुआ करते थे, और इस समस्या के समाधान के लिए धीरे धीरे उत्पादन की एक जो है संशोधित प्रथा का विकास होने लग गया, जिसे हम ददनी प्रथा कहते थे। इस प्रथा में जो व्यापार उस कारीगर द्वारा अपना बनाई गई थी वस्तुओं का जो है व्यापार करता था, वही उसे कच्चा माल और अग्रिम धनराशि प्रदान भी किया करता था। निर्धारित अवधि बिताने के बाद यह व्यापारी तैयार वस्तु को इकट्ठा करके जो है इसे बाजार में बेच दिया करते थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। कहते शाही कार्यशाला यानी कारखानों में शिल्पकारी उत्पादन का एक अन्य हिस्सा होता था, और ये कारखाने शाही स्थापन के अंग हुआ करते थे, और ये शाही घराने और दरबार के उपयोग के लिए वस्तुओं का जो है निर्माण किया करते थे। प्राय यहाँ पर बहुत महंगी और विलासिता की वस्तु का निर्माण होता था। यानी जो विलासिता का मतलब होता है जो आपके जीवन को आसान कर देता था, उन चीज़ों की जो होती थी यहाँ पर जो निर्माण की जाती थी, और महंगी महंगी भी होती थी। कहते कारखानों में बहुत ही कुशल कारीगर के नियुक्त किए जाते थे, जो कारीगर बहुत काफ़ी कुशल होते थे, यानी स्किलफुल होते थे, और जो एक ही छत के नीचे काम भी किया करते थे, और ज़्यादा के राज्य के अधिकारियों द्वारा इन पर जो है निगरानी भी रखी जाती थी। तो स्पष्ट है कि जो है बिल्कुल विभिन्न प्रकार के कारखाने होते थे। पहले पारंपरिक किस्म के कारखाने होते थे, जिसमें बहुत कम मात्रा में जो है विलासितापूर्ण वस्तुओं का निर्माण होता था, परंतु वे बहुत उच्च गुणवत्ता की शिल्पकारी वस्तुएं होती थी। और दूसरी जो है टकसाल या अशस्त्र निर्माण के एकक, जहां पर मानकों की दृष्टि से तकनीकी जो है उच्चता की वस्तुओं का बड़े पैमानों पर उत्पादन हुआ करता था। तो कहते हैं दोस्तों बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, ठीक है। और भूलना नहीं एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, तभी जो है आपको समय समय पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का जो है आप लाभ उठा सकोगे।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।